Hello everyone, welcome to Bioeduverse. आज हम एपोप्टोसिस पढ़ेंगे. Now एपोप्टोसिस नाम थोड़ा हेवी लगता है, but concept is actually very simple. So what is apoptosis? It is actually programmed cell death. So programmed मतलब सेल रैंडमली नहीं मरता है, उसको सिग्नल मिलता है और वो कंट्रोल्ड वे में डाई करता है. All right. Now one basic question for everyone. सेल को मरने की जरूरत क्या है? Our body does everything to nurture a cell. So why does it need to die? Because कभी कभी बॉडी के लिए बेटर होता है कि कुछ सेल्स रिमूव हो जाए. ओके, so it is programmed. The body wants that particular cell to die so that it will be betterment for the living organism itself. Now, तो हम क्या क्या कवर करेंगे, लेट अस सी. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, देन एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, एंड देन मैकेनिज्म्स स्टेप बाय स्टेप. ऑलराइट, डोंट वरी, सब कुछ एकदम सिंपल फ्लो में करेंगे. ऑलराइट, सो we'll try to cover it as much as possible in this lecture. I'll try to finish introduction to apoptosis, what is apoptosis, some general features and key differences, and caspase, my friends, very important. Okay, very important. CSIR के व्यू से. Now let us see from exam point of view. CSIR नेट में एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑल राइट, तो ये मल्टीपल यूनिट्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी major is in unit 2 cellular organization under the topic of cell cycle or cancer. Then you can find apoptosis in Unit 4, Cell Communication and Cell Signaling, under the topic of cell death. And you can also find it in Unit 5, that is Developmental Biology, under the topic of Tissue Sculpting. So, as you can see here, वो हर यूनिट में apoptosis का जिक्र किया गया है. So, you can try to correlate it. ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी से, पार्ट सी से. तो पार्ट सी में you can get a mixture of all these. Okay, mixture of all the units regarding apoptosis. Now, in exams, the question may come like comparison, pathways, protein like caspases, or a mixture of everything. So concept clear होना बहुत important है, रटना नहीं है. Got it? Now, what is apoptosis? See, apoptosis is a controlled way in which a cell dies. Got it? So controlled means it's planned. It is not accidental. हमारा बॉडी उसको इस तरह का प्लान करता है कि we want that particular cell to die, and thus it is targeted by our own body white blood cells such as macrophages, which destroy it completely. All right. So here you can see even the word apoptosis means falling off, like leaves from a tree. Okay. So just like leaves fall quietly without harming the tree, cells also die quietly without damaging nearby cells. Very important point in comparison to necrosis. Okay. हम आएंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स, हम डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे between apoptosis and necrosis. All right. Here you can see a genetically programmed, energy dependent cell death pathway eliminating unwanted or damaged cell without inflammation. Okay, the term is coined by Kerr, Wiley, and Curie, 1972. Now, my friends, it says genetically programmed. That means this process is controlled by genes inside the cell. हमारे जीन्स में ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि
This is the way you signal a particular cell. This is the way there is the sequence of events will take place, and this is the way the cell will die. Okay. So it, and here you can see it also says energy dependent. Now, what does it mean by energy dependent? Energy dependent का मतलब क्या है यहाँ पे? That means the cell is actively using energy to die, not passively. उस पर्टिकुलर सेल को मारने के लिए भी हम यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं, बिकॉज द बॉडी रियली वांट्स फॉर दैट पर्टिकुलर सेल टू डाई. ओके. सो द पर्टिकुलर सेल में भी कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कुछ डैमेज हो गया होगा, कुछ इंजरी हो गया होगा. तो अगर हम उसको वैसे छोड़ देते हैं तो फिर शायद से वो हमारे बॉडी को ज्यादा हार्म कर सकता है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ इट इज लेफ्ट लाइक दैट. बट बिफोर दैट let us see the rules, the psychological rules. Where does this happen? Okay. So first आप देख सकते हैं during embryonic development and tissue sculpting, like when fingers are formed or extra cells are removed. वैसे आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि टैडपोल्स में टेल्स होते हैं, बट फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होने के बाद नहीं होता है. तो वो टेल जाता कहाँ है? Through the process of apoptosis, the tail is destroyed or cut. Okay. Second, immune system. Wrong or harmful cells are eliminated. ये आपने ऑलरेडी दूसरे यूनिट्स में पढ़ा होगा, थाइमोसाइट सिलेक्शन, so we won't be talking about that. Here you can see next. Third is maintaining balance, that is homeostasis, which means old cells die and new ones are formed. It is very important, which maintains the equilibrium of the living organism. Okay. Now, let me tell you from CSIR net point of view. If apoptosis fails, what happens? See, dysregulation. It may cause cancer, it may cause autoimmune disease. मैं फिर से कहूंगी कि अगर आप एक सेल जो कि डैमेज्ड है, आप उसको अकेले छोड़ देते हो, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हो, सो विथ टाइम वो आपके बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और न्यूरोडिजेनरेशन. ओके. लेट अस मूव फॉरवर्ड. General features of apoptosis. Now, what actually happens inside the cell? Okay, so here we have morphological changes and biochemical changes. Let us see them one by one. Now, first of all, morphological changes. पहले क्या होता है? Cell shrinkage and rounding. The shell shrinks. Okay. Next क्या होता है? Chromatin condensation, जिसको कि हम pycnosis भी कहते हैं. Okay. Now, what is chromatin condensation or pycnosis? It means DNA becomes tightly packed, पूरा dense and inside the nucleus. Okay. न्यूक्लियस के अंदर जब डीएनए पूरा टाइट हो जाता है, वो होता है स्टार्टिंग ऑफ एपोप्टोसिस, जिसको कि कहते हैं पिक्नोसिस. गॉट इट. नेक्स्ट होता है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन. Now, this is called as karyohexis. What is karyohexis now? It simply means the nucleus breaks into smaller pieces. Okay. न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन. आपका एक न्यूक्लियस होता है हर सेल में, उसका जब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है उसे कहा जाता है कैरियोहेक्सिस. नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग. व्हाट इज ब्लेबिंग नाउ? द मेम्ब्रेन स्टार्ट्स फॉर्मिंग बल्जेस, जो जिसको कि कहा जाता है ब्लिप्स. अभी ब्लिप्स क्या होता है? स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर. ओके. तो आपका एक सेल है, जब उसका मेम्ब्रेन ब्लिबिंग होता है, उससे छोटा छोटा पीस ओके निकल आता है, जिसको कि ब्लेबिंग कहते हैं. और वो सारे छोटे पीस को बोला जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज. हियर इट इज ऑलरेडी रिटन. फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज. ओके. दिस सेल breaks into small pieces which are called as apoptotic bodies. Got it. Now, very important concept. These are then quickly removed by other cells. अभी other cells क्या आता है?
व्हाइट ब्लड सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस, ये वो लोग क्यों आते हैं वहां पे? सो दैट देयर वोंट बी एनी इन्फ्लेमेशन. गॉट इट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू बायोकेमिकल चेंजेस. अभी बायोकेमिकल चेंजेस, ये आपने जो देखा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, ये बाहर से आपको दिखता है, जो आप खुद ऑब्जर्व कर पाओगे, ये वो चेंजेस है. नाउ इनसाइड द सेल्स क्या होता है? बायोकेमिकल changes. First is caspase activation cascade. So caspases gets activated. Let us not go any deep now. We'll study them properly later on. But ये आप जान लो, ये एक बहुत important enzyme है जो कि apoptosis में major role play करता है. Got it? So बस इतना जान लीजिए कि DNA gets cut in a specific pattern. Okay. I'm sorry. Caspases वर्क ऑन प्रोटीन्स. नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डीएनए फ्रेगमेंटेशन. बायोकेमिकल चेंजेस के अंडर में आता है, और डीएनए हमारा गेट्स कट इनटू स्मॉलर पीसेस. और वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, वो आपका लैडर लाइक पैटर्न बनाते हैं इन द जेल. आप जब डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस में सब्जेक्ट करते हो, यू कैन गेट अ लैडर लाइक पैटर्न. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लैडर पैटर्न. ओके, सीढ़ी जैसा पैटर्न आपको दिखने को मिलता है. नेक्स्ट अब देखिए, फॉस्फेटिडिल सेरिन एक्सटर्नलाइजेशन. इसका मतलब अभी क्या है? जो फॉस्फेटिडिल सेरिन है, वो आपके मेम्ब्रेन के ऊपर मिलता है, तो वो अभी आउटर साइड को चला जाता है. जब एपोप्टोसिस होता है, इट गेट्स द सिग्नल टू गो आउटसाइड. द फॉस्फेटिडिल सेरिन which was inside earlier now is outside. Okay, so this kind of acts like a eat me signal for other cells. आप जब फॉस्फेटिडिल सेरिन कोई सेल में बाहर की तरफ होता है, तो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये सेल एपोप्टोटिक पाथवे में जाएगा. ओके, so it kind of acts like a marker. Next, we have cytochrome C release from mitochondria and proteolytic cleavage of cellular proteins. Let us discuss this clearly and more deeply in next few slides. Okay, now look at this diagram very carefully. This is the process visualization. This is showing the whole process step by step. हमने जो जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किया, आप जस्ट उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं. So at first, here you can see the cell starts shrinking, chromatin condensation. देखिए, ये एक नॉर्मल सेल लाइन है जिसमें कि जंक्शंस है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगे. So when this cell line gets signal, an apoptotic signal, कि this cell now has to undergo apoptosis and die. So what happens? First of all, microvilli contract, जंक्शंस ब्रेक होते हैं जो बीच बीच में जंक्शंस थे, और क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर शेल श्रिंकेज होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होते चलता है. उसके बाद ब्लेबिंग, सेल ब्लेब्स वायलेंटली. यहाँ पे ब्लेबिंग स्टार्ट हो गया है. देखिए, छोटा छोटा एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हो गया है. धीरे 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 फिर सेल फ्रैगमेंट्स इनटू मेम्ब्रेन enclosed apoptotic bodies, like I told earlier. Now, apoptotic bodies phagocytosed by neighboring cells and roving macrophages, as we have discussed earlier. So this was the visual representation of what we studied earlier. Okay. Next, this is one of the most important comparisons. इसमें questions भी आते हैं. Let us see apoptosis versus necrosis. Okay, so here you can see apoptosis is a controlled process. Got it? But necrosis, it is accidental. What do you mean by accidental? मतलब जब कोई सेल एक ट्रामा आता है या फिर एक इंजरी हो जाती है, जो अचानक एक्सीडेंटल स्टफ होता है, जो कि पहले से प्लान नहीं होता है, वो आता है नेक्रोसिस के अंदर. वो सेल फॉलो करता है नेक्रोसिस पाथवे. बट जो प्लान्ड होता है, दैट फॉलोज द एपोप्टोटिक पाथवे. गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, इन एपोप्टोसिस सेल श्रिंक्स.
Okay, but in necrosis what happens? Cell swells. Very important. पूरा अपोजिट देखिए, सेल यहाँ पे श्रिंक करता है, बट यहाँ पे नेक्रोसिस में स्वेलिंग करता है. स्वेलिंग को क्या कहा जाता है? ऑन्कोसिस. गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, इन एपोप्टोसिस मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, बट इन necrosis membrane ruptures. अभी here it says karyolysis. Now what do you mean by karyolysis? That means nucleus completely dissolves. यहाँ पे देखिए, एपोप्टोसिस में लिखा है कैरियोहेक्सिस और यहाँ पे लिखा है कैरियोलाइसिस. यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो completely डिसॉल्व हो जा रहा है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होता है. गॉट इट. Now, most important and the biggest difference is in apoptosis there is no inflammation. But आप अगर नेक्रोसिस की बात करेंगे, so here inflammation is present. So apoptosis क्या है? A clean, silent death. But necrosis is messy, inflammatory death. Okay, two opposite stuffs. I'll say it again. Apoptosis, clean and silent, and necrosis, messy and inflammatory. Got it? ये देखिए, ये आपका रहा एक नेक्रोसिस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन. नाउ तो देखिए यहाँ पे ट्रामा हुआ सेल लाइन के ऊपर, cells and organelles swell, chromatin condensation, membrane compromised, fluid rust in का मतलब क्या हुआ? सेल स्वेलिंग हो गया. गॉट इट. जब वो स्वेलिंग होता है, dissolution of cellular structures happen and cell lysis, thereby leading to phagocytic cell invasion and further inflammation. Got it. Okay, now these images show real examples of apoptosis. Okay, here you can see like formation of fingers or cell between fingers are removed. Here you can see, and this whole process is done by apoptosis only. Okay, so without apoptosis finger would remain joined. हमारा जो 5 फिंगर आप देख रहे हो अलग अलग है, वो joined ही होता if there was no apoptosis. So apoptosis helps in shaping our body. So apoptosis is not just theory, this actually happens in real tissues. So cell die and cleared without damaging the surroundings. Got it? आगे चलते हैं. Caspase is very important. Now we come to the main players, which are caspases. Okay, but don't get scared by the name only, because caspases are enzymes that cut proteins. Very simple. Proteases, but here you can see it is written differently. Cysteine dependent aspartate specific proteases. Now, what does it mean? ये पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ. Again, cysteine dependent aspartate specific protease. What does cysteine here stand for? मतलब caspase के जो एक्टिव साइट में cysteine प्रेजेंट होता है, जो कि इसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now that is why it is dependent on cysteine dependent. Aspartate specific. This particular protein this particular enzyme cuts its protein which has aspartate in their sequence. जहां जहां उसको aspartate देखने को मिलता है, वो वहीं वहीं पे कट करता है. That is why it is said cysteine dependent aspartate specific protease. Zymogens activated by proteolytic cleavage central to all apoptotic pathways. So आपको पता है कि ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको कि कहते हैं जाइमोजन. जब हम उसको स्टिमुली देते हैं, वो फिर कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम में, जिसको कि बोला जाता है कैस्पेज. गॉट इट. नाउ कैस्पेज आपको 3 कैटेगरीज में मिलेंगे. फर्स्ट है इनिशिएटर कैस्पेज, सेकंड है एग्जीक्यूशनल कैस्पेज, एंड थर्ड है इन्फ्लेमेटरी कैस्पेज. सो फर्स्ट इनिशिएटर कैस्पेज
क्या क्या होते हैं, कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 9, कैस्पेज 10। सो ये फर्स्ट कैस्पेजेस होते हैं जो कि एक्टिवेटेड होते हैं। इनमें डोमेन्स होते हैं, इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में डोमेन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उन्हें इंटरेक्ट करने के लिए adapter protein के साथ. So once they are activated, they activate the next level of caspases. The next are executioner caspases, जो कि हैं caspase 3, caspase 6 and caspase 7. These are the main workhorses. Okay, so once they are activated by initiator caspase, they go around cutting hundreds of different proteins in the cell. ये लोग कॉज करते हैं वो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिसके बारे में हमने बात की पहले स्लाइड्स में। क्या क्या चेंजेस, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ब्लेबिंग और डीएनए फ्रेगमेंटेशन जैसे स्टफ्स। ओके, सो ये लोग हैं मेन जो कि कट करके ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं। फिर थर्ड में देखिए है इन्फ्लेमेटोरी कैस्पेजेस। ये क्या क्या है, कैस्पेज 1, कैस्पेज 4 एंड कैस्पेज 5। सो ये लोग rather than getting involved in apoptosis, they are involved in inflammation. So they activate inflammatory cytokines. Got it? फिर देखिए ये जो कैस्पेस का कैस्केड है ये सेल्फ एम्पलीफाइंग है। इसका मतलब क्या है, वंस आपका ये जो इन्फ्लेमेटोरी आई एम सो सॉरी, ये जो इनिशिएटर कैस्पेज है ये जब एक्टिवेट हो जाता है ये दूसरों को एक्टिवेट करते चलता है। वो एक्टिवेट करते हैं दूसरे कैस्पेजेस को, दूसरे कैस्पेज दूसरे प्रोटीन्स को करते हैं और ऐसा ऐसा होके वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, इरिवर्सिबल बन जाता है। द सेल, द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक श्योर कि ये सेल आज एपोप्टोसिस होगा ही होगा। गॉट इट? वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को कट करता है जैसे कि PARP, लेमन्स एंड आईकैड। PARP एक डीएनए रिपेयर एंजाइम है। लेमन्स वो प्रोटीन्स है दो जो कि न्यूक्लियर एनवेलप को सपोर्ट करता है। और आईकैड वो है जो कि CAD को रिलीज करता है, कैड प्रोटीन, अनदर प्रोटीन जो कि डीएनए को कट करता है। एंड अदर cytoskeletal proteins which also cause cell shrinkage and blebbing. Okay, let us move on to the next slide. Now, the most important slide of today's lecture, the activation of initiator caspases such as caspase 8 and caspase 9. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनिशिएटर कैस्पेज का स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, इट हैज adapter binding domain and it has a protease domain, and the protease domain has cleavage sites. It has two inactive monomers, here you can see. So ये रहा आपका इनिशिएटर कैस्पेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जाइमोजेन के फॉर्म में है। अभी ये इनिशिएटर कैस्पेज को एपोप्टोटिक सिग्नल मिलता है थ्रू द हेल्प ऑफ अडेप्टर प्रोटीन्स। नाउ व्हाट डू दिस अडेप्टर प्रोटीन्स डू, they go and bind to the adapter binding domain of initiator caspase, that is caspase 8 और caspase 9. ओके, तो वो क्या करता है आपके अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन में जाके बैठ जाता है। बैठ जाने के पास ये बाद ये पूरे जाइमोजेन में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस, ये आप देखिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक डाइमराइजेशन, एक्टिवेशन एंड क्लीवेज। सो फर्स्ट क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है, देन एक्टिवेशन। यहाँ पे क्लीवेज साइट से कट होके ये वाले जो डोमेन है वो आके ऐसे बाइंड हो जाते हैं। लार्ज सब यूनिट्स इधर रहते हैं एंड स्मॉल सब यूनिट्स दे बाइंड टुगेदर लाइक दिस। Just remember that there is a structural change when the adapter proteins bind to the adapter binding domain of initiator caspase, inactive initiator caspase. And now this leads to the formation of active caspase. उसका structural change हो गया। Now the initiator caspase is active initiator caspase. Now what does this active initiator caspase do? It acts as a signal
is acts as an activator for the executioner caspase. Executioner caspase such as caspase 3, caspase 6 and caspase 7. तो जैसे कि अडेप्टर प्रोटीन्स इनिशिएटर कैस्पेज के लिए एक एक्टिवेटर की तरह काम किया, वैसे ही एग्जीक्यूशनल कैस्पेज के लिए एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेज एक एक्टिवेटर की तरह यहाँ पे काम करेगा. So similarly, it gets activated by cleavage, and now the inactive executioner caspase is active caspase. Okay, let us go through this once more. Very simple. ये रहा आपका initiator caspase which is in inactive form. It has two places, very important domains here. One is the adapter binding domain and the other is the protease domain. The protease domain has cleavage sites. When there is apoptotic signal, the adapter proteins bind to the adapter binding domain. इसके साथ bind होने के बाद there is structural changes in the inactive initiator caspase and thus it forms active initiator caspase. Okay, now this active caspase goes and binds with the executioner caspase and thus it is converted to active executioner caspase. Now this active executioner caspases goes and cleaves multiple substrates. बहुत सारे different proteins को वो कट करता है, जैसे कि अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं PARP, ICAD, lamins. तो उनको वो डिस्ट्रॉय करता है, thus leading to apoptosis. So this was the whole process. I hope आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे एक्टिवेशन मैकेनिज्म्स आल्सो, बट बिफोर दैट लेट अस वंस अगेन सी व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. ये था ये कंटेंट्स. हमने बहुत चीजें खत्म कर ली है. वी हैव फिनिश्ड इंट्रोडक्शन टू एपोप्टोसिस, व्हाट इज एपोप्टोसिस, जनरल फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस. फिर हमने की डिफरेंसेस के बारे में भी बात की एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के अंदर. फिर हमने बात की कैस्पेजेस के बारे में, द एग्जीक्यूशनर्स. ये तीन टाइप के कैस्पेजेस होते हैं, इनिशिएटर कैस्पेज, एग्जीक्यूशनल कैस्पेज एंड इन्फ्लेमेटरी कैस्पेजेस. In the next class, we shall discuss extrinsic pathway, उसका कैसा मैकेनिज्म रहता है, उसका बिड एंड एम्प्लीफिकेशन के बारे में. फिर इंट्रिंसिक पाथवे जो कि एक डिफरेंट रूट होता है डेथ रिसेप्टर पाथवे से. फिर हम बात करेंगे एपोप्टोसोम के स्ट्रक्चर और उसके एक्टिवेशन के बारे में. फिर हम बात करेंगे BCL2 फैमिली के बारे में. Got it? So till now we have discussed till caspases, and here you can see we discussed what is apoptosis, its roles, क्या क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, एपोप्टोसिस अगर नहीं होगा बॉडी में तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमने ये भी बात की. नेक्स्ट हमने इसके फीचर्स के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस किया, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट वन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपका क्लियर हो गया होगा. फिर हमने बात की द की डिफरेंसेस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. यहाँ पे कैरियोहेक्सिस होता है तो यहाँ पे कैरियोलाइसिस होता है. यहाँ पे इन्फ्लेमेशन एब्सेंट होता है तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होता है. ये आपने देखा नेक्रोसिस का एक और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है यहाँ पे. फिर हमने बात की कैस्पेजेस के बारे में, 3 टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर हमने देखा कि कैसे इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव हो रहा है. एक्टिव होने के बाद पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, फिर एक्टिव हुआ, फिर वंस ये एक्टिवेट हो जाता है वो फिर कैसे एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करता है. एक्टिव कैसे करता है, बाय क्लीवेज. इसका भी होता है यहाँ पे क्लीवेज साइट्स, वहां पे क्लीवेज होने के बाद दिस बिकम्स एक्टिव एग्जीक्यूशनल कैस्पेज. नाउ दिस एक्टिव एग्जीक्यूशनल कैस्पेज क्लीव्स मल्टीपल सबस्ट्रेट्स व्हिच thereby lead to apoptosis. तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर एंड होता है. आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा.
In the next upcoming lecture, we'll discuss more about it. We'll finish apoptosis. We'll also see some CSIR नेट लाइफ साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एपोप्टोसिस के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे. आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा आपके स्टडीज में. Kindly go through everything that we have discussed and let us meet in the next lecture of Bioeduverse. Thank you, everyone.